ایک بہت بڑے یہودی عالم کا بیٹا جو جوان تھا اور بہت خوبصورت تھا، اچانک اس کے ساتھ ایک دن ایسا کیا ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس یہودی نوجوان کی خاطر وحی نازل فرمائی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حباب تھا۔ حباب نوجوان تھا، خوبصورت تھا، ذہین تھا، سمجھدار تھا۔ اس یہودی عالم کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے حباب کو اچھا سے اچھا کھلایا تھا، اچھا سے اچھا پہنایا تھا، اسے خوب تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ وہ یہودی عالم جانتا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو میری کرسی سنبھالنی ہے، یعنی میرا جانشین بن کر اسے یہودیوں کا عالم بننا ہے۔ اسی اعتبار سے اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ ایک دن حباب نے اپنے والد کی تجوری میں دیکھا، جہاں وہ مال و دولت رکھتا تھا، ہیرے جواہرات رکھتا تھا، انہی تمام مال و دولت کے درمیان ایک لال رنگ کا چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ حباب کے دل میں جستجو پیدا ہوئی، آخر اس ڈبے میں کیا ہے ذرا دیکھوں تو صحیح۔ جب اس نے ڈبے کو اٹھایا تو دیکھا اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ حباب نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ مہر نہ کھول سکا۔ آخرکار اس نے اس ڈبے کو دوبارہ تجوری میں رکھ دیا اور اپنے والد کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا، ابا حضور، آج میں نے آپ کی تجوری میں ایک چھوٹا سا ڈبہ دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ ڈبے کے منہ پر مہر لگی ہوئی ہے، آخر اس ڈبے میں کیا ہے؟ تو والد کہنے لگا، بیٹا، اس کے اندر نہ ہیرے جواہرات ہیں، نہ کوئی خزانہ ہے، بلکہ اس کے اندر چند صحیفے ہیں۔ ابھی تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی تمہارا ذہن پختہ نہیں ہوا، تمہیں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ جس دن تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی، تمہارا ذہن پختہ ہو جائے گا، جب تم صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل بن جاؤ گے، اس دن وہ ڈبہ میں تمہیں دکھاؤں گا اور ڈبے کے اندر جو صفحات موجود ہیں، جو کاغذات موجود ہیں، میں تمہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور میں تمہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر والد نے بات کو ٹال دیا، لیکن حباب کے دل میں جستجو پیدا ہو گئی، آخر اس ڈبے میں ہے کیا؟ وہ موقع کی تلاش میں لگا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ یہودی عالم اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب حباب نے دیکھا کہ تمام لوگ شراب پینے میں مصروف ہیں، موقع غنیمت جان کر وہ دوبارہ تجوری کے پاس آتا ہے، اسے کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد اس نے اس ڈبے کو اٹھایا اور جیسے تیسے کر کے اس نے اس ڈبے کے منہ پر لگی مہر کو توڑ دیا۔ اب مہر کو توڑنے کے بعد جب اس نے ڈبہ کھولا، اس نے دیکھا کہ ڈبے کے اندر دو سفید رنگ کے کاغذ موجود تھے۔ اس نے ان دونوں کاغذوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ ایک کاغذ میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اس نے دوسرے کاغذ کو پڑھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ آپ کی ولادت کہاں ہوگی، آپ ہجرت کب کریں گے، آپ اعلان نبوت کب فرمائیں گے، آپ کا رنگ کیسا ہوگا، آپ کی زلفیں کیسی ہوں گی، آپ کی سیرت کیسی ہوگی، آپ کا اخلاق کیسا ہوگا۔ جب حباب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پڑھا، وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا، اس کے دل میں خود بخود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب حباب نے ان کاغذات کو دوبارہ ڈبے میں رکھا، ڈبے کو تجوری کے اندر رکھا اور اپنے والد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، ابا حضور، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کے باوجود آپ حق کو چھپاتے ہیں۔ جب آپ کو حق کا پتہ چل گیا، اس کے باوجود آپ یہودیت کو مانتے ہیں، لوگوں کو یہودیت کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود یہودیت سے توبہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، ان کے دین کو قبول کر لیں۔ اس یہودی عالم نے جب یہ سنا، اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے بہت پیار سے حباب کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن حباب نے اپنے باپ کی کسی بات کو بھی نہیں مانا، بلکہ وہ بے ساختہ پکار اٹھا، میں تم سب کو گواہ بنا کر یہودیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں بن دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں اور اپنے باپ دادا کے دین سے
तौबा करता हूँ। जब हब्बाब के बाप ने ये बातें सुनी, फौरन उसे मारना पीटना शुरू किया, यहाँ तक कि मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया, होश आने के बाद फिर उस यहूदी आलिम ने अपने बेटे हब्बाब को समझाना चाहा, लेकिन हब्बाब ने अपने बाप की कोई बात न मानी। यहाँ तक कि उस यहूदी आलिम ने अपने बेटे हजरत हब्बाब को कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह अकबर। वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन किसी से कोई शिकायत न की। वो यहूदी आलिम हर 3 दिन के बाद खाने के लिए उन्हें एक जौ की सूखी रोटी बेचता था और एक प्याला पानी पीने के लिए बेचता था। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो यहूदी आलिम अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में आता है। उसने देखा कि कैद खाने में हजरत हब्बाब एक कोने में बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। जब यहूदी आलिम ने अपने बेटे को कैद खाने में रोता हुआ देखा तो करीब जाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रहे हो। कैद बंद की वजह से रो रहे हो, भूख और प्यास की वजह से रो रहे हो, अपने गलत फैसले की वजह से रो रहे हो। जब उसने ये कहा, हजरत हब्बाब का ईमान जोश मारता है। आप फरमाते हैं, अल्लाह गवाह है, मैं कैद बंद की वजह से नहीं रोता, मैं सूखी रोटी और एक प्याला पानी की वजह से नहीं रोता, मैं कैद बंद की तकलीफों की वजह से नहीं रोता, बल्कि मैं तो मोहम्मद की जुदाई में रो रहा हूँ, मैं तो उनसे मुलाकात करने के लिए रो रहा हूँ। जब यहूदी आलिम ने ये सुना, उसे बहुत गुस्सा आया। वो लामतान करता हुआ वहां से पलटकर वापस चला गया। कुछ अरसे के बाद वो वक्त भी आता है जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, जैसे उस यहूदी आलिम को पता चला, उसने फौरन अपने तमाम गुलामों और खुद्दामों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अगर तुम सब मेरा एक काम कर दोगे, मैं वादा करता हूँ तुम सबको इनाम भी दूंगा और तुम सबको आजाद भी कर दूंगा। तमाम गुलामों ने एक जबान होकर कहा, बताएं हमें क्या करना है। इस पर वो यहूदी आलिम कहता है, मेरा बेटा हब्बाब जो कैद खाने में है, जाओ उसे कैद खाने से निकालो और मदीना मुनव्वरा से कहीं दूर उसे लेकर जाओ, वहां ले जाकर उस पर जुल्म करो, ज्यादती करो, उससे मेहनत मशक्कत के काम करवाओ, उसे इतनी तकलीफ दो कि या तो तकलीफों की वजह से वो मर जाए या तो वो तौबा करके दोबारा बाप दादा के दीन की तरफ पलट आए, यानी वो यहूदी बन जाए। जब गुलामों ने ये सुना, कैद खाने में जाते हैं, हजरत हब्बाब को निकालते हैं और निकालने के बाद मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर एक जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाकर उनके हाथ में रस्सियां बांध देते हैं, उनके पांव में बेड़ियां बांध देते हैं और उसके बाद दिन रात उनसे मेहनत मशक्कत के काम करवाते हैं। न उन्हें खाना देते हैं, न उन्हें पानी देते हैं, न रात उन्हें सोने देते हैं, बल्कि तमाम गुलाम मिलजुल कर उन पर जुल्म और ज्यादती करते रहे, दिन रात मेहनत मशक्कत के काम कराते रहे। हजरत हब्बाब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर चीज को मुस्कुरा मुस्कुरा कर बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन उनके बर्दाश्त की हद हो गई। रात के अंधेरे में हजरत हब्बाब अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला आसमान से पानी बरसाने वाला तू है, जमीन से सब्जा उगाने वाला तू है, हवा चलाने वाला तू है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला तू है, ऐ अल्लाह इज्जत और जिल्लत देने वाला तू है, बीमारी और शिफा देने वाला तू है, कैद बंद से आजाद करने वाला तू है। ऐ अल्लाह तेरे महबूब की जुदाई में मैं बहुत तड़प चुका हूँ, कोई ऐसे असबाब मुहैया कर दे कि जल्द तेरे महबूब से मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। रात के अंधेरे में जब तमाम गुलाम सो रहे थे, हजरत हब्बाब ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और दिल से अल्लाह की बारगाह में फरियाद की। नतीजा ये हुआ, पाँव की बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाती हैं, हाथ की रस्सियां खुद ब खुद खुल जाती हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हजरत हब्बाब अब उस जंगल से निकलकर भागना शुरू करते हैं। वहां से मदीना मुनव्वरा तकरीबन 80 मील की दूरी पर था। पूरी रात भागते भागते आप आखिरकार
सहर सुबह होते होते मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो जाते हैं। आप एक घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं। कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की थी, आपने जुल्म ज्यादती बर्दाश्त की थी, आपके हाथ में रस्सियां, पांव में बेड़ियां थी, आप बहुत कमजोर हो चुकी थी। आप वहां दरवाजे पर बैठे थे कि अचानक आपने देखा सामने से कोई शख्स चला आता है। वो जब करीब आए वो कोई और नहीं, हजरत अम्मार बिन यासिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब वो करीब आए तो उन्होंने देखा एक शख्स दरवाजे पर बैठा हुआ है, बहुत कमजोर है, सर के दाढ़ी के बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं। आपने पूछा, ऐ शख्स तू कौन है, कहां से आया है, यहाँ क्यों बैठा है? हजरत हबाब ने कोई जवाब न दिया। अम्मार बिन यासिर ने कहा, तुझे दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है, ये तेरा हाल कैसे हुआ, यहाँ कैसे पहुंचा? जैसे ही जनाबे हबाब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, फौरन तेजी से उठते हैं, दौड़ते हैं, फौरन जाकर अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद कहते हैं कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। अम्मार बिन यासिर कहते हैं, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, मैंने कई मर्तबा माथे की निगाहों से उनके चेहरे बद्दुआ की जियारत की है। इतना सुनना था। हजरत हबाब आगे बढ़ते हैं और अम्मार बिन यासिर की आंखों को चूमना शुरू कर देते हैं। जनाबे अम्मार बिन यासिर समझ गए ये कोई और नहीं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई आशिक मालूम देता है, कोई दीवाना मालूम देता है। हुजूर की मोहब्बत में इसका ये हाल हुआ है। जनाबे अम्मार बिन यासिर हजरत हबाब को अपने साथ लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका दीवाना है, न जाने कहां से आया है, आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लगता है आपकी मोहब्बत में इसका ये हाल हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने आशिक को देख ही रहे थे कि हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर आते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और अल्लाह फरमाता है कि यह आपका दीवाना, आपका आशिक जो बिन देखे आपको दिल दे बैठा है, न जाने कितनों की जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त करता हुआ आखिरकार आपकी बारगाह में पहुंच ही गया, इसे अपने दोस्तों में शामिल कर ले। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला हजरत हबाब के ताल्लुक से फरमाता है, इसे अपने दोस्तों में शामिल कर ले। आखिर वो शख्स जो एक यहूदी का बेटा था, जो कि खुद अपने बाप की तरह कुफ्र शिर्क में डूबा हुआ था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह ने उसे वो मकाम अता किया कि अल्लाह खुद फरमाता है कि महबूब, इसे अपने दोस्तों में शामिल कर लो। आखिर जनाबे हबाब को ये मकाम मिला तो मिला कैसा? महबूब की मोहब्बत में अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है। पता चला जो महबूब से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। हमें और आपको भी चाहिए हम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आशिकों की तरह, इन दीवानों की तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। यकीनन अगर दिल में महबूब की मोहब्बत होगी, बिगड़ी बन जाएगी। जो काम नहीं बनते हैं वो काम भी आसान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा। अल्लाह हमें और आपको भी सहाबा इकराम की तरह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, उनकी सुन्नतों को अपनाने, उनकी सीरत तैयबा को अपनाने की तौफीक अता करे और अल्लाह हमें अपने महबूब के सहाबा की मोहब्बत का सदका दुनिया और आखिरत में अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।